Hello students, how are you all? So let us continue with the syllabus now. We will start with some questions related to the potential. So here is one question, that is the question from NCERT book. It is the question that a charge of 8 millicoulomb that is kept at the origin and a charge minus 2 into 10 raised to power minus 9 coulomb that is taken from point P whose coordinates are 0, 0, 3 centimeter to a point Q whose coordinates are 0, 4 centimeter and 0 via a point R whose coordinates are 0, 6 centimeter and 9 centimeter. We have to calculate the work done. That what is the work done to take this charge from point P to Q. As we know that the electrostatic forces are conservative forces, so therefore the work done that does not depend on the path along which the charge is taken from one point to another point. So it only depends on the potential difference between the 2 points. So we have to calculate the potential difference between the points Q and P ड्यू टू दिस चार्ज. इस चार्ज की वजह से हम लोगों ने पहले क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकालना. तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे हम लोग, देखो OP हमारे पास कितना है बेटा, दैट इज 3 सेंटीमीटर. OQ देखें तो 4 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर दैट इज 3 into 10 raised to power minus 2 मीटर. OQ दैट इज 4 सेंटीमीटर दैट इज 4 into 10 raised to power minus 2 मीटर के बराबर आपके पास आ जाएगा. मीटर के बराबर देखिए इसको, ठीक है. 4 into 10 raised to power minus 2 मीटर के बराबर आपके पास आ गया, ठीक है. अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P और P एंड Q. क्योंकि P से Q तक लेकर गए तो हमने निकालना है VQ minus VP. सो लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस VQ minus VP दैट इज इक्वल टू, देखो Q upon 4 pi epsilon naught, ये तो आपके पास आ जाएगा कॉमन, इनसाइड 1 upon OQ minus 1 upon OP. That's what is the potential difference. So Q तो बेटा आपके पास कितना है, 8 into 10 raised to power minus 3, 1 upon 4 pi epsilon naught, 9 into 10 raised to power 9. इनसाइड आपके पास बच गया कितना, that is 1 upon OQ that is 4 into 10 raised to power minus 2 minus 1 upon 3 into 10 raised to power minus 2. ये आपके पास है. 10 raised to power minus 2 भी कॉमन है. यहाँ से मैं देखूँ अगर तो हमारे पास आ गया 9 8 72 into 10 raised to power 6 upon 10 raised to power minus 2. और यहाँ पर आपके पास बच गया 1 upon 4 minus 1 upon 3. ये आपके पास बच गया. तो ये आपके पास आ गया 72 into 10 raised to power 8. यहाँ पर देखें अगर हम लोग LCM is 12. So this is 3 minus 4. So यहाँ से देखिए अगर हम लोग, so 12 6 72. So this will comes out to 3 minus 4 that is minus 1. So this will comes out to be minus 6 into 10 raised to power 8 volt. This is the potential. So the work done that is equal to charge into potential difference. So Q naught into VQ minus VP. So VQ आप अगर वर्क डन निकाल लें तो Q naught आपके पास कितना है, minus 2 into 10 raised to power minus 9. और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो आपके पास आया है minus 6 into 10 raised to power 8. So this comes out to be work done that is equal to 12 into 10 raised to power minus 1. So this work done that is equal to 1.2 joule के बराबर आपके पास ये work done है. So this is the work done to take the charge from point P to Q by R. क्योंकि R जो पॉइंट है आपके पास दैट इज इररिलेवेंट, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. दैट्स व्हाई द वर्क डन जो है हमारे पास वो हम लोगों ने उसका पाथ फॉरवर्ड जो है वो
कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने वर्क डन जो है वो निकालना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये दिया गया है कि 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, वर्क डन दिया गया है कितना 20 जूल, और वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। वो चार्ज है कितना है 4 कूलम, उसको मूव करने के लिए फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जहां पर पोटेंशियल है आपके पास कितना 10 वोल्ट टू अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज V वोल्ट। ये हमारे पास, मैं इसको वोल्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जहां पॉइंट कितना 10 वोल्ट है वहां से कहां तक V वोल्ट तक हम लोगों ने इसको मूव करने के लिए लाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, यहां से यहां तक लेकर के गए, तो जिस पॉइंट तक लेकर के गए वो पहले लिखते हैं, जहां से लेकर के गए वो बाद में लिखते हैं। तो वर्क डन हमें पता ही है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना है, जिस पॉइंट पर पहुंचे वो पहले लिखना है, V भी, और जहां से चले वो बाद में लिखना है, ये ध्यान रखना है। वर्क डन कितना है बेटा 20 दैट इज इक्वल टू Q कितना है आपके पास 4 कूलम, V भी हम लोगों ने निकालना है, V के बराबर है, VA कितना है आपके पास दैट इज 10 वोल्ट। ये 4 से 20 चला गया तो कितना बच गया 5 दैट इज इक्वल टू V माइनस 10, सो दिस इज 15 इज इक्वल टू V, तो हम लोग लिख सकते हैं V दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट के बराबर आपके पास ये इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दे दिया जाता है, जैसे मान लो कोई स्फीयर है या कोई आपके पास सर्कल है, मैं एक सर्कल का इस तरीके से चलता हूं। एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, थोड़ा सारा इसको बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। ये इसका सेंटर मान लिया, यहां पर रख दिया हमने पॉजिटिव चार्ज की सेंटर। अब इसकी वजह से अगर इसकी रेडियस r है तो हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा सेम आएगा। हमने क्या किया, कोई चार्ज Q पॉइंट A से पॉइंट C तक लाए और फिर लेकर के आगे पॉइंट B तक। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B बाय पॉइंट C। चाहे आपके पास ये स्फीयर हो, चाहे आपके पास पॉइंट ये क्या हो सर्कल हो, क्योंकि A और B के ऊपर पोटेंशियल क्या है सेम है, क्योंकि ये बराबर दूरी के ऊपर है, कहां से Q से। तो किसी चार्ज Q को ही लेकर के आए, मान लो कोई चार्ज Q है आपके पास, एक Q नॉट हम लोगों ने मान लिया। देखो अब यहाँ पर अगर चले हम लोग BA दैट इज इक्वल टू BB, सो वर्क डन टू मूव द चार्ज, मान लो चार्ज Q नॉट मूव किया दैट इज इक्वल टू कहां से A से B तक, तो BB माइनस BA। अब क्योंकि VA दैट इज इक्वल टू VB है तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू Q नॉट इनटू, मैं लिख दूं इसको किसके बराबर VA माइनस VA, तो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू Q नॉट इनटू 0, सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू 0, so no work is done to move the charge from one point to another point। यहाँ पर हमारे पास कोई वर्क डाला नहीं हुआ, कहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लाना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास हमने बात की थी, देखो एक रिलेशन किया था हमने, रीजनिंग से चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कंसेप्ट को। हमने बात की थी दैट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो उसमें बोला गया था कि दैट E इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इट मींस दैट V that decreases in the direction of the electric field। अब अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं आपके पास पैरेलल एंड स्ट्रेट, ये हमारे पास आ गई पैरेलल एंड स्ट्रेट इस तरीके से।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैं तो दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये दिस इज पॉइंट ए और इसके बिल्कुल यहां पर वर्टिकल नीचे पॉइंट ले दिया बी। इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज सेम। मैं बोल सकता हूं दैट वी ए दैट इज इक्वल टू वी बी। लेकिन अगर अब क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर यहां पर अगर बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, देयरफॉर the value of the electric field intensity at each and every point in this region that is same। हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास यहाँ पर यूनिफॉर्म। लेकिन क्या पोटेंशियल भी सेम है? नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इट मींस इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं कोई पॉइंट सी ले लेता हूं यहां, जैसे ये पॉइंट सी ले लिया मैंने ये, सो द पोटेंशियल एट सी दैट इज लेस देन द पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट ए। मतलब सी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कहां पर, बी से क्या आएगा, कम आएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ ई। सीधा रीजन क्या लेना है आप लोगों ने, डेटा potential decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, डिक्रीज। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग थ्योरी का कंसेप्ट लेकर चलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे हम लोग, वो निकाल के चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज की क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, बाकी कोई चार्ज वहां पर नहीं है, उन्हीं सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। तो जैसे हम लोग क्या करते थे 11th क्लास में, हम लोगों ने निकाली थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई स्टोन है आपके पास, एनी स्टोन दैट इज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वहां पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सीधा लिख देते हैं कि भाई दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। लेकिन है क्या ये, उसको हमने क्या माना है कि दैट व्हाट एवर इज द वर्क डन टू टेक दैट स्टोन टू दैट मच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां पर आपके पास क्या है, प्लेन है, उस सरफेस से उतनी हाइट तक उस स्टोन को ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा वही उसमें क्या स्टोर होगा, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन लेकर के कौन जाएगा भाई उसे, वो तो वहीं पर लाई कर रहा है, बहुत बड़ा स्टोन है, लेकर के कौन जाएगा, प्रैक्टिकली कौन लेकर के जाएगा। लेकिन हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अगर भाई उसको ले जाने में जितना वर्क डन होगा वही उसमें क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो वैसे ही जब आपके पास क्या दिया गया होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए गए होंगे, तो हमने ये मान करके चलना है एक्चुअल में वो सिस्टम ऑफ चार्जेस जहां पर है लोकेट है वहीं पर, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि इनिशियली वो चार्जेस वहां पर नहीं है। हमने उन सारे चार्जेस को कहां से लेकर के आना है, इन्फिनिटी से लेकर के आना है उनके उस पोजीशन के ऊपर जहां पर वो एक्चुअल में दिए गए हैं। सो देन whatever is the work done to assemble all the charges at their specific positions, then that work done is stored as their electric potential energy of the system of the charges. So
the electric potential energy of a system of charges is the total amount of work done to bring all the charges to their specific position from infinite large mutual separations. Infinitely large mutual separations. उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर लेकर के आना है, कहां से? इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशन से। तो जो वर्क डन होगा आपके पास वही क्या स्टोर हो जाएगा आपके पास? दैट विल स्टोर एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्जेस। तो यहां पर हम लोग पहले निकालेंगे दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू चार्जेस। पहला जो हम लोग निकालेंगे यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charges। मान लो हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। यहां पर है Q1 और ये है Q2, ठीक है। ये है पोजीशन P1 और इसका पोजीशन वेक्टर है इन स्पेस R। दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन द स्पेस एंड दिस इज द पॉइंट P2 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर R। दीज आर इन द स्पेस। द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट दैट इज R1 2। ये मान लो हम लोगों ने क्या मान ली? इनके बीच की सेपरेशन। अब मान करके क्या चलेंगे कि पहले ये दोनों के दोनों चार्जेस यहां पर हैं ही नहीं, हमने कहां पर लाना है इनको? इन्फिनिटी से लेकर के आना है। हम ये मान कर चलेंगे कि ये दोनों के दोनों चार्जेस यहां पर नहीं हैं, है तो एक्चुअल में ये तो यहीं गए हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ये मान कर चलेंगे कि ये यहां पर नहीं है। हम लोग कहां से लेकर के आए इनको? इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे। तो जो जितना वर्क डन होगा इन चार्जेस को इनकी पोजीशंस के ऊपर लाने के लिए, वही वर्क डन क्या हो जाएगा? दैट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ द चार्जेस। तो दो चार्जेस की बात, तो पहला Q1 है, दूसरा है Q2। पहले की बात करते हैं हम लोग। ये Q1 को हम लोग ले जाएंगे इन्फिनिटी से यहां पर। भाई यहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो वर्क डन आता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। इट मींस पोटेंशियल इज जीरो, देयरफॉर वर्क डन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो पहले बात करेंगे हम लोग वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P1 R। क्या आएगा? जीरो। वर्क डन क्या हो गया? जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था आस पड़ोस में। तो वर्क डन क्या हो गया यहाँ पर? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल जीरो था तो वर्क डन हो गया जीरो। अब ये चार्ज पहुंच गया यहाँ, इस चार्ज को ले आए हम लोग, तो ये चार्ज आ गया यहाँ पर Q1। Q2 अभी भी कहाँ पर है? इन्फिनिटी के ऊपर। ये यहाँ पर है कहीं पर, कहाँ पर? इन्फिनिटी। इसको लेकर के आना है यहाँ। लेकिन अब चार्ज Q1 यहाँ पर आ चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आएगा पोटेंशियल। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर पहले क्या? पोटेंशियल एट P2R2 ड्यू टू Q1। निकालो भाई। V दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? चार्ज क्या है? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है R1। तो वर्क डन, अब पोटेंशियल आ गया यहां पर इतना, इसके बराबर, इस V के बराबर। सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम कहां से? इन्फिनिटी टू P2R। इसके बराबर आ जाएगा W2 दैट इज इक्वल टू Q2 इंटू V। Q2 इंटू V किसके बराबर है? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन
4 pi epsilon naught r12. So total work done, कितना हो गया? That is to assemble the two charges W1 plus W2, that is equal to this work done 0 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12. So that is only this work done, that is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12. This is the work done to assemble the charges. अब यही जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस. यहां पर आ गया चार्ज और सेकंड या सो द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. निकाल दो आप लोग, किसके बराबर? u के बराबर. ये वर्क डन के बराबर आपके पास आ जाएगी, दैट इज u दैट इज इक्वल टू q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12. ये हो गया दो चार्जेस. हो गया सीधी सी बात. q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12. हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस. देखते हैं आप वो कैसे करते हैं. सिस्टम ऑफ n चार्जेस. चलो निकाला इसको भी. सिस्टम ऑफ n चार्जेस. यहां पर 2 की पूछी जाती है, 3 की, 4 की, 4 मैक्सिमम 4 चार्जेस की पूछी जाती है, इसलिए हम लोग n की निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं सिंपल सा आर्टिकल आप लोगों को ये करवा रहा हूं कि सिंपली हम लोगों ने करना कैसे है. इसको देखते हैं हम लोग. यहीं पर चलेंगे हम लोग. बेटा ध्यान से समझना है इसको. ये बस एक सिंपल सा प्रोसेस है. पहले देखो, पहला चार्ज लाना है हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर. ये है P1R. बाकी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज. कौन सा? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम infinity to P1 R1. क्या रहेगा? W1 is equal to 0. यहां पर आ गया चार्ज Q1. अब दूसरे चार्ज को लाना है हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर, ये P2R, और यहां से डिस्टेंस आ गई R1. तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल चाहिए हम लोगों को. दूसरा चार्ज लाना है यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर. सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2R2 इस पॉइंट पर लाएंगे हम. तो क्या आएगा ये वर्क डन? W2 that is equal to charge Q2 into potential due to Q1. इस Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल. तो हम लोग ये वर्क डन करते हैं किसके बराबर? Q2 into इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर किसके बराबर रहेगा? दैट इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. तो ये आ गया पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 दे दिया. अब मान लो तीसरा चार्ज जो है मैं लाना चाहता हूं इस पॉइंट के ऊपर. ये था P3R3.
मैंने मान ली R2 3, 2 से 3 की, और यहां से डिस्टेंस मैंने मान लिए R1 3, 1 से 3 तक। अब वर्क टू ब्रिंग चार्ज Q3 from infinity to P3 R3. So this work done that is equal to Q3 into, अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आ गया, इस चार्ज की वजह से भी आएगा और इस चार्ज की वजह से भी आएगा, तो यहां पर आएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो हमारे पास ये वर्क डन आ गया इसके बराबर Q3, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 निकालेंगे तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है यहां से R13, प्लस Q2 की वजह से देखें तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितनी है R23, ठीक है। तो ये चार्ज Q3 भी पहुंच गया यहां। So this work done, that is Q1 Q3 upon 4 pi epsilon naught R13 plus Q2 Q3 upon 4 pi epsilon naught R23. This is number 3. अब मान लो हम लोगों ने एक चार्ज और लेकर आना है, फोर्थ चार्ज यहां P4R4, ये मैंने पॉइंट माना, तो इसकी डिस्टेंस यहां से तो मान ली R14, यहां से मान ली R34, और यहां से मान ली मैंने R2। इस पॉइंट पर लाना है, इस पॉइंट पर लाना है Q, इस पॉइंट। अब सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q4 from infinity to P4R4। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखते हैं किसकी वजह से, देखो W4 आएगा, एक तो आएगा चार्ज Q4, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इस चार्ज की वजह से, फिर Q2 की वजह से, फिर Q3 की वजह से, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3। So this work done W4 Q4। पहला देखते हैं Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14, डिस्टेंस कितनी है R14। दूसरा देख लेते हैं Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से डिस्टेंस है 24 R24, प्लस 3 से देख लेते हैं Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। सो कुल मिलाकर के वर्क डन अगर देखें हम लोग तो ये वर्क डन W4 दैट इज इक्वल टू Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 upon 4 pi epsilon naught R24 plus Q3 Q4 upon 4 pi epsilon naught R34। ये है हमारे पास, let this one be number 4। ऐसे ही 5th लाना हो, 6th लाना हो एंड सो।
वी विल कंटिन्यू। अब 4 चार्ज की तक हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल वर्क डन की बात कर लेते हैं हम लोग। चारों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल वर्क डन, फिर एक सिंपल सा फार्मूला कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। सो टोटल वर्क डन देखते हैं हम लोग। टोटल वर्क डन टू असेंबल ऑल द चार्जेस, assemble all charges। देखते हैं W that is W1 plus W2 plus W3 plus W4 and so on। So this work done that is 0 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12। पहला हमारे पास यही है, पहले तो 0 आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा देखते हैं Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। फिर देखते हैं ये फोर्थ Q1 Q4, इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अब इसको हटा दूंगा, इन सभी को हटा प्लस यहाँ Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस लास्ट में Q3 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34 एंड सो। मैं इस टोटल वर्क डन को ऐसे लिख लूं, वर्क डन देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में है, ये मैंने ले लिया कॉमन इनसे Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 Q2 Q4 ये ले लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 तक मैं चला जाता हूँ, उसको लिख लूँ मैं Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस ये ले लिया मैंने पहले Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस, अब चलेंगे 2 से Q2 Q3 R23 है प्लस Q2 Q4 R24 प्लस ये बच गया Q3 Q4 R34। देखो ध्यान से, जहां 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 ये आपके पास आ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको n चार्जेस तक क्या कर दूं, यहाँ पर सम कर दूं। दिस इज द वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन हमारे पास में स्टोर रहेगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। This work done to assemble the charges is stored as electric potential energy of system of charges। तो मैं U लिख लूं यहां पर U दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीशन लगा के मैंने यहां पर लिख दिया ऑल पेयर, यहां पर लिख दिया मैंने Q I Q J और यहां पर R J और यहां पर K, ये J और K मैं लिख देता हूं Q J और Q K
अब मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूँ, u दैट इज इक्वल टू, यहाँ पृष्ठ तक पहुँचो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीधा इसको वर्क डन दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकते हो, दिस w दैट इज इक्वल टू u के बराबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। u मैंने इसको लिख दिया समीशन j फ्रॉम 1 to n k फ्रॉम 1 to n where j that is not equal to k, दोनों बराबर नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 है, qj qk अपॉन rjk। लेकिन ये सम अगर देखें और एक चीज और आगे साथ में यहाँ पर 1/4 पाई ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें हम लोग इस सम को, देखो अगर j 1 आ रहा है तो k हमारे पास 2 है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई j आपके पास 2 आ जाए और k आपके पास 1 आ जाए, इसका मतलब दिस समीशन दैट इज डबल द एक्चुअल समीशन, तो ये डबल है, इट मींस हम लोगों ने इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, सो तो ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, इस से आप लोगों ने करना है। अब ये तो कोई नहीं पूछता है आप लोगों के पास यहाँ तक ये फार्मूला कैसे ध्यान में रखना है, इसकी टेक्निक है बेटा, एक टेक्निक को सीखना है हम लोगों ने, ये नहीं रट्टा नहीं लगाना है। ये आर्टिकल तो हो गए कंप्लीट। जैसे मान लो आपके पास कोई दो चार्ज है, देखो पोटेंशियल एनर्जी के जो यूनिट है वो है जूल, आपके पास ऐसा यूनिट, और ये आपके पास किलर क्वांटिटी है। जैसे मान लो आपके पास सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस दे रखा है, 2 चार्जेस है मान लो आपके पास, 2 ही है, Q1 Q2, एक से कम दूसरे तक वापिस नहीं आ रहा, तो वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, U दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस, दैट इज Q1 से गए Q2 तक, तो क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इनके बीच की R1, बस हो गया। अगर मान लो 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस आपके पास आ गए, 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3, ऐसे हैं 3 चार्जेस, डिस्टेंस इनके बीच पे आ गई 1 2 1 3 2 3 ऐसे आ गए, ठीक है। तो देखो आप वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ले लिया कॉमन, पहले जगह Q1 Q2 तक जा सकता है तो लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R12, अब Q1 से Q3 तक भी जा सकते हैं तो क्या लिख दिया प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, हो गया, पीछे नहीं है, अब 1 का खेल हो गया खत्म, ये दोनों तक पहुंच गए। अब Q2 जो है वो Q3 तक जा सकता है, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है, तो क्या लिखेंगे प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, बस हो गया बात। ऐसे ही अगर आपके पास क्या दे रखा है, 4 चार्जेस दे रखे हैं, मान लो 4 चार्जेस हैं आपके पास, कितने हैं 4 चार्जेस, याद रखना है इसको, ऐसे नहीं है कि भाई रट्टा लगाना है इस फार्मूले को, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन करेंगे हम। 4 चार्जेस दे रखे हैं आपके पास, देखो Q1 Q2 Q3 Q4, ये 4 चार्जेस, वैल्यू लास्ट में रखना है, यहाँ से निकालना वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस और द पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गए, पहले से चलना है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, तो Q1 से Q2 R12, फिर ये यहाँ पर गया प्लस Q1 Q3 R13, फिर ये पहुंच गया 4 तक, प्लस Q1 Q4 R14, हो गया यहाँ तक। अब बारी आ गई इसकी सेकंड वाले की, ये पहुंच गया, ये तो हो गया बाहर, अब 2 से चले, Q2 से कहाँ तक गए, Q2 Q3 पर पहुंच गए, R23 प्लस Q2 से कहाँ पर Q4, Q2 Q4 R24, अब ये भी हो गया क्या बाहर,
अब बच गया 3 तो 4 तक ही जाएगा, पीछे नहीं हटना है, तो क्या आ गया प्लस Q3 Q4 और R3, बस हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क। अब बात आती है स्पेशल केसेस पे। वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क डन to assemble the charges that is equal to the electric potential energy of the system of charges। ये हमारे इट मीन्स दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू। लेकिन कई बार क्या पूछा जाता है दैट व्हाट इज द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ चार्जेस। डिसोसिएट मतलब उनको सेपरेट करना, पहले तो असेंबल करने के लिए बोला गया लेकिन उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, तो दैट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस। सो वर्क डन टू डिसोसिएट, ध्यान रखना है यहां पर, ये भी कई बार पूछा जाता है, द सिस्टम ऑफ चार्जेस of charges that is equal to negative of the electric potential energy of the system of charges। So this work done to dissociate, मैं W dash से लिख दिया, that is negative of the potential energy। इस तरीके से आपको बनाए काम करना, ठीक है बेटा। और इसके SI यूनिट अगर बात करें हम लोग, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल एंड इट इज आल्सो मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर आपके पास, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो हम लोग एटम और न्यूक्लियर में इसको कर सकेंगे, ये कन्वर्ट्स नहीं। ओके, तो आज के लिए इतने ही है। थैंक यू एंड हैव अ